Aditi, this is about economics. पहले तो मुझे ये बता दो, what according to you is the syllabus of economics? What is the syllabus for economics? हाँ, 11th and 12th. So we'll have certain portions of microeconomics, है ना? And then we'll have certain portions from macroeconomics. So micro and macro. And then there is this portion by the name of Indian economic development, right? Which talks about the economy from 1947 till now. This thing we don't have in our syllabus, but we'll study since we have a lot of time, right? Economics, if we have to study from CVT perspective, it won't take a lot of time because we have to cover NCERTs line to line, making sure that we are covering all the questions that are probable into it. How many questions will we get in our examination? 50 questions, right? Every question will be of 5 marks. For us to score a perfect 100 percentile, how many questions do we have to mark correctly? 50. Not very tough task. Not telling you just because anxiety ना हो, बट बहुत जनरली 50 क्वेश्चंस ये करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक? इफ वी आर कवरिंग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी इज बीइंग कवर्ड, ऑल योर क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड. पहला चीज़ मुझे ये बताओ, व्हाट लेवल डू यू वांट टू स्टडी? डू यू वांट टू स्टडी इकोनॉमिक्स एट अ वेरी एग्जॉस्टिव लेवल और जस्ट विच हेल्प्स यू इन योर एग्जामिनेशन? हाँ, we'll definitely have time, so we'll try to make it very exhaustive. We'll start with macro economics, ठीक? आई एम अज्यूमिंग कि माइक्रो नहीं मैक्रो से करते हैं, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स समझ में आता होगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करेगा? हाँ, तो माइक्रो विल टॉक अबाउट योर हाउस होल्ड, individual preferences, right? So let's say if there is a concert of Diljit Dosanjh happening in Lucknow, a concert of Diljit Dosanjh happening in Lucknow, so a lot of economy would be involved. You'll have to pay Diljit, then there would be some marketing cost, तो स्टेज वगैरह, साउंड, लाइट, टेंट, सबका कॉस्ट होगा. अगर हम इस इवेंट की इकोनॉमी पढ़ने की कोशिश करते हैं, विल दिस बी काउंटेड अंडर माइक्रो और मैक्रो? देयर वुड बी इकोनॉमी ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो लेट्स से वी आर स्टडिंग इकोनॉमी ऑफ दिलजीत दोसांझ का कोई कॉन्सर्ट, या फिर किसी भी, चलो लेट्स से सम आईपीएल का मैच, आईपीएल का फाइनल्स. इफ वी आर ट्राइंग टू स्टडी द इकोनॉमी ऑफ आईपीएल फाइनल्स, विल दिस बी काउंटेड अंडर माइक्रो और विल दिस बी काउंटेड अंडर मैक्रो? माइक्रो. दिस विल बी काउंटेड अंडर माइक्रो. आई टेल यू व्हाई. लेट्स से अज्यूम देयर इज अ फार्मर, ठीक? ये मेरे पास या आपके पास आता है, एंड यू आर एन एग्रीकल्चर कंसल्टेंट. यू आर एन एग्रीकल्चर कंसल्टेंट. So let's say this farmer comes to you and he says that please let me know how can I increase the productivity of my farm? How can I increase the productivity of my farm? So there is a difference between production and productivity, पता है? Production productivity में अंतर पता है ना? So he wants to increase the productivity of his farm. आपने देखा कि इसके फार्म में बहुत सारा वाटर आता है, लैंड भी फर्टाइल है, तो इसको ऐसा करते हैं, सजेस्ट कर देते हैं शुगर केन, कि भाई तुम शुगर केन ग्रो कर लो. अब इसके लिए तो शुगर केन इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जो इसके कंडीशंस हैं और सूटेबल फॉर शुगर केन, बिकॉज शुगर केन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप. क्वेश्चन पूछा हुआ है सीवीटी में. शुगर केन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप. ऑल्सो राइस इज अ वेरी वाटर इंटेंसिव. इंटेंसिव समझते हो? कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वाटर, बोथ राइस एंड योर शुगर केन. सो राइस एंड शुगर केन आर वाटर इंटेंसिव. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नाउ दिस डिसीजन दैट यू गेव टू दिस फार्मर वॉज अकॉर्डिंग टू हिज फार्म लैंड, अकॉर्डिंग टू हिज नीड, अकॉर्डिंग टू हिज जोग्राफी, राइट? अब यही फार्मर, लेट्स से, is coming from your Deccan regions, is coming from your Deccan region. Now Deccan region is rich in black soil, is rich in black soil. Now black soil is something which helps us in cotton production. अब अगर black soil वाले एरिया का किसान आके आपसे क्वेश्चन पूछता है, how do I increase my productivity so that I can increase my income levels, will you suggest him the same? No. Hence this will become a part of micro. दिलजीत दोसांझ का इकोनॉमी पढ़ते हैं, मान लीजिए उसके हमने कॉन्सेप्ट का इकोनॉमी पढ़ा, ठीक है? तो वी सॉ, लेट्स से, द सीट ऑक्यूपेंसी रेशियो. सीट ऑक्यूपेंसी रेशियो क्या होता है? कि कितनी सीट्स थी और कितनी ऑक्यूपाइड थी. तो लेट्स से देयर वर 100 सीट्स एंड 80 सीट्स वर ऑक्यूपाइड, तो द सीट ऑक्यूपेंसी रेशियो इज 80%, है ना? तो अब हम मान लीजिए हम सीए हैं, वी आर सीए ऑफ दिलजीत दोसांझ. तो हमने इसका शो का पूरा एनालिसिस किया एंड वी केम टू दिस पॉइंट कि सर सीट ऑक्यूपेंसी रेशियो वाज ओनली 70%, ऑल्दो उसका तो 100 था, बट लेट्स से, तो हमने सोचा कि यार ये 70% क्यों था? 70% इसलिए था कि शायद हमने सही मौसम में, सही इवेंट्स या फिर सही कैलेंडर ईयर में सही जगह पे कॉन्सर्ट प्लेस नहीं किया, हमने छुट्टियों में ही कॉन्सर्ट प्लेस नहीं किया, वीकडे पे प्लेस कर दिया. ये सारा इकोनॉमी जाएगा ना, इकोनॉमिक्स होता है इसके पीछे कि इसको वीकेंड पे ही रखो, इसको लॉन्ग वीकेंड पे रखो, इसकी मार्केटिंग ऑफलाइन करना है बिल बोर्ड पे या इसकी मार्केटिंग ऑनलाइन करो. तो बहुत सारे डिसीजंस आप चेंज करोगे नेक्स्ट ईयर. व्हाई? सो दैट यू कैन इंक्रीज योर income levels, you can increase your profitability. Now since this is an individual organization, we specifically talking about Diljit Dosanjh ka concert, here we are specifically talking about the farmland of this particular farmer Ram. Let's say Ram, we talking specifically about this farmer. तो ये सब माइक्रो हो गया. Let's say some organization, and if we have to talk about Google,
अगर गूगल का हमें इकोनॉमी पढ़ना है तो ये भी किस में आएगा, माइक्रो, समझ रहे हो, स्पेसिफिकली कॉन्टेक्चुअलाइज टेलर मेड फॉर एन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट विल बी काउंटेड अंडर माइक्रो, है ना। और जब हमें डिसीजंस पैन इंडिया लेवल पे लेने हैं, तो लेट्स से वी आर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नाउ आवर मोटो इज टू, व्हाट इज आवर मोटो, if let's say we are the agriculture minister, we want to increase the productivity, we want to increase the income of farmers, we want to increase their livelihood. एग्रीकल्चर के साथ साथ हम इसके साथ बहुत सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री के लिए करेंगे, है ना, एनिमल हस्बेंड्री समझते हो, तो दैट हिज इनकम कैन इंक्रीज, राइट, वी कैन इन्वेस्ट इन कैटल्स, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब हम जब स्पेसिफिकली किसी सेक्टर, स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली किसी इंडिविजुअल के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस को स्टडी करते हैं, देन वी स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमी, सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ, व्हाट इज इकोनॉमी। See, economics means very simple. Just remember the fact, optimum utilization of resources. Can you give me a good example of it? The human resource. How do we optimum utilize it? Let's take this example. We'll come on to human capital. Chalo. First, let us take this example of parking. है ना? Let us take this example of parking. When I say economics, I mean to say optimum utilization of resources. अभी पार्किंग का मान लीजिए टेंडर निकला, है ना, मैं गया, आप गए, ऐसे बहुत सारे लोग गए, हम सबने टेंडर लगाए, ठीक है, आपको भी एक पार्किंग स्पेस मिली, मुझे भी एक पार्किंग स्पेस मिली, मैंने उस पार्किंग स्पेस में क्या किया, उसको मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया, तो मैंने उसी स्पेस को यूटिलाइज कर लिया। लेट्स से योर पार्किंग कैन हैव अराउंड 50 कार्स, मैंने क्या किया, उसके ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग बना दी, मैंने इसे 4 लेयर्स बना दी, हाइड्रोलिक से गाड़ी नीचे उतर आती है, हाइड्रोलिक से गाड़ी ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो नाउ इन द सेम रिक्वायर्ड स्पेस आई एम एबल टू पार्क हाउ मेनी कार्स, 200 कार्स। तो एम आई नॉट ऑप्टिमाइजिंग माई रिसोर्सेज वेल, यस इंडीड, है ना। तो मेरा इकोनॉमिक्स ज़्यादा यहाँ पे बेटर है। इसको प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, चलो इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में समझो। तो देयर इज दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ते हैं। पहले ना हमारे देश में या तो पब्लिक सेक्टर होता था, है ना, या फिर प्राइवेट सेक्टर होता था। पब्लिक सेक्टर इज व्हेन द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, है ना, यही तो बात होती है, ठीक। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, द रिसोर्सेज आर हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज, है ना, रिसोर्सेज आर हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज। अब कुछ इसके फायदे थे, कुछ इसके नुकसान थे। जैसे पब्लिक सेक्टर के फायदे क्या क्या होते हैं, वेलफेयर, एवरीवन इज गेटिंग अ जॉब, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन इन्वॉल्व, ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी आर एबल टू गेट अ जॉब। पब्लिक सेक्टर इज मोर और लेस वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट, बट एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर में कम होती है। प्राइवेट सेक्टर में देखोगे एफिशिएंसी इज मोर, बट देयर इज लेस सोशल सिक्योरिटी। लेट्स से इफ यू आर फायर्ड, है ना। प्राइवेट सेक्टर तो दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स थे। तो हमने क्या किया, हमने ना तो प्रोजेक्ट इधर बनाना शुरू किया ना इधर, हमने एक बीच में मॉडल लाया पीपीपी। So we'll have certain good things from the public sector, then we'll have certain good things from the private sector, and we started working on the public-private partnership model, right? अभी नया मॉडल इंडिया में क्या आया देखो, BOT, BOT, TOT, BOT, BOT. Now BOT stands for built, so that's not balance of trade, वो हमारा अलग चैप्टर है। So BOT stands for built, operate and then transfer, which means, so let's say there's a project, सरकार क्या कहेगी मुझको, you come here, you built it, you operate it for certain years. Now why do I operate it for certain years? So that I can get in my revenue. So let's say if I bought this airport, let's say there is an airport, Lucknow airport, अडानी से took it, अडानी ने खरीद लिया। अब अडानी ने एक लंप सम किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब वो उसी को क्या करेगा, मान लो बिल्ड करेगा, टर्मिनल 3 बनाया, उसमें ऑपरेट करेगा कुछ 30-40-50 साल, so that उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस आ जाए, और अल्टीमेटली आफ्टर 50 ईयर्स और 30 ईयर्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो ट्रांसफर कर देगा। समझे, इसमें दोनों को फायदा है। क्यों, लेट्स से इफ अडानी इज पुटिंग इन ₹50, ही इज एबल टू गेट 200 रुपीज इन दोस 50 ईयर्स, ठीक। What, like, how is this helping the government? It is helping the government in a way कि government is getting that 50 रुपीज़, उसके पास तो वो रिसोर्स था ही, ऑपरेट करने में सैलरी वगैरह देनी पड़ती थी, टेंशन खत्म, स्टाफ कम, कुछ पैसा भी मिल गया, उस पैसे से नए प्रोजेक्ट लगा सकते हो। तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पीपल, है ना, बोथ द एंटिटीज। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, देयर इज दिस मॉडल कॉल्ड एज TOT ऑल्सो, विच मीन्स टोल, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। मतलब दिल्ली मथुरा हाईवे अगर कभी जाना, तो ये ना अभी आज से 4-5 साल पहले अडानी जी को कुछ टाइम के लिए दे दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे, वो टोल वसूलेंगे। तो जो तुम जितना भी टोल दे रहे हो किसको दे रहे हो, अडानी को। अब इसके बदले में अडानी उस रोड को क्या करेगा, ऑपरेट भी करेंगे, ऑपरेट इन द सेंस कहीं पे गड्ढा हो गया
कहीं पे मार्केटिंग करानी है, कुछ कराना है तो ऑपरेट भी करेंगे, और कुछ टाइम के बाद जब अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल चुके होंगे तो ट्रांसफर कर देंगे। गवर्नमेंट को इसमें भी फायदा हो गया। नाउ व्हाई इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू स्विच टू द प्राइवेट सेक्टर? अभी देखो, अभी दिल्ली मथुरा हाईवे है मान लो, अगर इसको सरकार चला रही होती तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको उतना फायदा, कुछ डायरेक्ट इंसेंटिव तो दिखता नहीं। लेकिन अगर इसको अडानी ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है अडानी यहाँ पे 4 तरीके के बिलबोर्ड्स लगा दे। ये बिलबोर्ड्स लगाने से क्या होगा, जो कंपनीज होती हैं वो पैसे देंगी। तो लेट्स से रेड बुल वांट्स टू एडवर्टाइज, तो रेड बुल विल गिव देम सम मनी। Optimum utilization of resources, the resources are same, the road is same, but he's able to optimize it, he's able to maximize the benefits that can accrue from this road। समझ में आ रहा है? अच्छे यहाँ पे रेस्ट रूम्स बना देंगे, समझ में आ रहा है, उसमें प्लेइंग एरिया बना देगा। इफ यू माइट हैव गॉन टू दिस प्लेस कॉल्ड मूर्थल, दिल्ली सोनीपत के आगे एक मूर्थल जगह है, तो वहाँ पे जाके यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ रहे हो, इकोनॉमी को, सेम इकोनॉमी को बेहतर बना दिया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू। इफ यू विजिट मॉल्स यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कियोस्क्स देयर। कियोस्क मतलब टपरी, आपने देखा होगा, ये तो शॉप्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो ओपन एरिया होते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वो टेम्पररी शॉप्स लगा के बैठे होते हैं मॉल्स के अंदर, यू विल फाइंड देम। तो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ऑप्टिमाइजिंग देयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज उतना ही है, उसको ऑप्टिमाइज करो, यही है इकोनॉमी, और कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स। समझ में आया? जब इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल सेंट्रिक, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो देन इट फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझो यहाँ तक बात, अब सुनो। एक ना थिंकर आए एडम स्मिथ नाम के। अब क्या होता है, तुम्हें इकोनॉमिक्स समझ में आया? इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, स्कूल ऑफ थॉट्स। ये तो मैंने तुमको मतलब बता दिया इकोनॉमिक्स का, ऑप्टिमम यूटिलाइज रिसोर्सेज, नॉट डिफरेंट थिंकर्स विल कम एंड दे विल ट्राई टू गिव डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स। आपका अपना अपना ओपिनियन होगा, है ना? इस तरीके से वी हैव डिवाइडेड इकोनॉमी इनटू थ्री थ्री टाइप फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी। वन इज योर कैपिटलिस्टिक, वन इज योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कैपिटल को केस पता होगा, है ना? देन सेकंड इज योर सोशल इकोनॉमी। Now, capitalist economy specifically talks about profit making। कैपिटलिस्ट को फर्क नहीं पड़ता कौन आगे है कौन पीछे है, कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। द सोल मोटिव व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, हुक और बाय क्रुक, यू जस्ट मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। व्हेन वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज लीस्ट। जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो क्या है, लीस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मानती है कि भाई सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपने आप बैठ जाएगा। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आके, कोई एंटरप्रेन्योर आके क्या करेगा, उसकी सप्लाई मीट कर देगा, सरकार को बीच में ज़रूरत नहीं है। तो योर डिमांड एंड सप्लाई वुड बी मेंटेन्ड व्हेन, इन विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रोपाउंडर कौन हुआ, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बात हैंड मीन, इनविजिबल हैंड मतलब एक ऐसा हाथ है जो दिख नहीं रहा है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो अपने आप उसकी सप्लाई मैच हो जा रही है। अगर उसका डिमांड गिरेगा तो अपने आप मैन्युफैक्चरर उसका सप्लाई कम कर देगा। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। द गवर्नमेंट doesn't have to interfere. If people are not liking pink color pants, the manufacturer will stop making pink color pants. Since the demand for pink color pants is limited, then only limited supply of pink color pants would be there. I know it's getting very boring, but I have to start from the very beginning, है ना? शुरू से ही पढ़ाऊंगा तो देन ओनली देन इट बी बेटर। बाकी करने को तो ये सब टू टेक वेरी लेस टाइम। चलो, बट तो ये चीज़ बोलता है कौन, डिमांड और सप्लाई कहाँ से खुद से मिसमैच हो जाएगी, खुद से बन जाएगी, और ये काम कौन कर रहा होगा, सम इनविजिबल हैंड विच विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये कहता है कि कुछ भी अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी डिमांड है, नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी डिमांड नहीं है। समझ में आया? दिस इज योर कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। नाउ योर सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी विल से दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी इन द हैंड्स ऑफ government, should be in the hands of government, so that there is equitable distribution, so that there is equitable. Now mind this, I did not say equal, I said equitable. What is the difference between equal and equitable? Okay, let's take a very simple example, so let's say if I have two kids, one of them is rich and one of them is not very rich, and let's say I have 40 acres of land with me. So if I am making an equal distribution, what I should ideally do is give them 20 acres. But let's say if someone is poor, I would give him 35 acres, or let's say 30 acres, and the one who is rich, I'll give them 10 acres. तो सोशलिज्म में हमें इक्विटेबल बनाना है, हमें इक्विटेबल बनाना है। इंडिया में देखो, अभी इसको इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा ऐड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। यू नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज? In our country there is rule of law, in our country there is rule of law. Now how do we know this? यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है?
What is a state? Is India a state? Is India a state? What is the difference between a state and a country? I'm not, देखो दो तरीके के स्टेट्स हैं. एक पॉलिटिकल साइंस नाम का सुना होगा सब्जेक्ट होता है ना. तो अगर छोटा एस लिखते हो तो ये छोटा वाला एस जो होता है दिस डिनोट्स यूपी, एमपी, उत्तराखंड, ऑल ऑफ दीज स्टेट्स जिसको आप बोलते हैं स्टेट, समझ गए. और एक होता है कैपिटल एस का स्टेट. जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो हम इस स्टेट को पढ़ते हैं. स्टेट का लिटरल मीनिंग होता है राज्य. व्हेन आई से राम राज्य, आई डोंट वांट टू मीन अयोध्या. राज्य इज अ स्टेट जहाँ का एक राजा होगा. तो कोई भी लैंड को, कोई भी प्लेस को स्टेट बोलने के लिए वी रिक्वायर फोर थिंग्स. वी रिक्वायर four things. One is your population. One is your population. You should have population, definitely. Second is your government. There should be a government also to regulate the people. To regulate this population, there should be a government who will take decisions on their behalf. है ना? नहीं तो chaos हो जाएगा. Thirdly, what do we want? There should be land. People तो population हो गया ना. So we have people now. There is a land on which people are there, and there is a legitimate government. ये सारी conditions satisfy हो गई. तो ये तो उत्तर प्रदेश बन गया ना. पॉपुलेशन है, हम सारे हैं. लैंड है, यूपी के पास खुद का लैंड है. गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ है, गवर्नमेंट भी है. बट इज यूपी अ स्टेट विद अ कैपिटल एस? नो. व्हाई? बिकॉज द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज दैट द स्टेट शुड बी सोवरेन. सोवरेन का मतलब होता है इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन. इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन. नाउ व्हेन आई से कैन यूपी टेक इट्स ओन डिसीजन? नो, नॉट कंप्लीटली, नॉट fully sovereign. Why? Let's say if UP wants to wage a war against Bangladesh, can it do so? If let's say UP wants to wage a war against Pakistan, can it do so? If India wants to wage a war against Pakistan, yes. Is India a state? Yes. How? Because India has population, India has government, India has its own territory, which means land, and India has its own. Fourth point, sovereignty. India has its own sovereignty. Sovereignty in Hindi we call it samprabhuta. Samprabhuta मतलब मैं सबसे प्रभु हूँ, मतलब संप्रभुता, sovereignty. So there is no external force that can influence my decisions. I can take my own decisions. Is Nepal a state? Yes. Yes. Even smallest of a country is a state. If any land territory, if any territory has these four requirements: sovereignty, population, territory, government, it becomes a state. UP is not a state. Politically, it's not a state. It's a state with a capital S, small s, not the capital S. तो एक तो होता है स्टेट. ठीक ठीक. मान लीजिए इंडिया एज अ स्टेट तैयार हो गया. इंडिया एक स्टेट है, आप समझ गए. और इंडिया में यहाँ पे कौन बैठे हैं? सिटीजन्स. और कौन बैठा है? सिटीजन्स. व्हाट आर वी गिविंग टू द स्टेट? आर वी गिविंग एनीथिंग टू इंडिया? बताओ. नो. वो तो हम खुद ही सिटीजन है ना. तो सिटीजन देखो स्टेट को क्या दे रहा है. आर वी नॉट गिविंग देम वोट? गिविंग देम वोट. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर वोट that they are able to rule us. है ना. Any person who is above the age 18, irrespective of his caste, color, race, religion, sex or place of birth, is eligible to vote. This is written in Article 326 of the Indian Constitution. Article 326, very important for your GT portion, right? Now we are giving them vote. What else are we giving them? हाँ हाँ. Human capital देखो ये लड़ाई चीजें. Are we not giving them tax? Giving them tax. What is the state giving to us? State का थोड़ी है land, वो तो हमारा we the people. State is giving us law and order. The reason why we can have a class here is because we feel that we are safe. We feel we are safe because there is state to take care of. पुलिस state ही तो है, गवर्नमेंट ही तो है ना पुलिस. Government has three organs: legislature, executive and judiciary. Legislature is the one who makes the law, executive is the one who executes them, and judiciary makes sure that legislature and executive are not overriding their powers. है ना. समझ में आ रहा है? चलो ठीक है. So what is the citizen giving to the state? We giving them votes, we giving them tax. What is the state giving to us? Law and order. And secondly, it is also giving us welfare in forms of hospitals, schools, midday meals. ये सारी स्कीम्स चलती है ना. तो स्टेट और सिटीजन के बीच में कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन है. अब यही स्टेट और सिटीजन्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है ना, उसी को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक तो है कैपिटलिस्टिक, जिसमें स्टेट बोलता है सिटीजन को कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, तुम आपस में बना खा लो, मैं छोटे छोटे काम कर दूंगा. आई विल मेक श्योर दैट यू पीपल आर सेफ. आई विल मेंटेन एन आर्मी, है ना. आई विल डू सम सॉर्ट ऑफ सोशल वर्क, बट डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू गेट इनटू इंडस्ट्रीज. डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू मेक श्योर दैट आई एम पेइंग यू समथिंग. है ना. आप डिमांड सप्लाई खुद से बना ले. दुनिया में यही चलता रहा. फिर ये सोशलिज्म तो हार्डकोर बोलता था गवर्नमेंट को सब दे दो. फिर एक इकोनॉमी आई, मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड ने बोला कि वील हैव सर्टेन गुड थिंग फ्रॉम कैपिटलिस्ट एंड वी टेक समथिंग फ्रॉम सोशलिस्ट. इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. वील हैव बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स. वी हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. अच्छा ये देखो, जब स्टेट और सिटीजन के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, है ना. What if the state is not giving me the things that it has promised, or let's say the citizens are not giving things which it has promised? Where do both of these go? So let's say the state
and then there's citizens. So citizens have said that we'll give you vote and tax. Secondly, state has said that we'll give you law and order and welfare. If citizens are not getting proper law and order or welfare, let's say the state is not getting any of these, where do they go? मुक्कालात करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे? नहीं. Where will they go? They'll approach the court of law. कोर्ट जाएंगे, कोर्ट ही तो जाएंगे, है ना? कोर्ट ही जाओगे ना. तो both of these will go where? कोर्ट. अब कोर्ट अपने मन से तो फैसले देगा नहीं, कोई लॉ होगा, कोई किताब होगी, है ना? तो जब हम आज़ाद हुए 1947 में, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, वी मेड श्योर दैट वी हैव दिस लॉ बाय द नेम कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मदर लॉ ऑफ द लैंड. एनी लॉ दैट द पार्लियामेंट वांट्स टू लेजिस्लेट ऑन, कोई भी नया कानून अगर पार्लियामेंट बनाता है, इट शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. इट शुड नॉट सरपास द कॉन्स्टिट्यूशन. इट शुड नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ इट्स वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. वकील वही तो करता है. अभी तो उसको बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बोलता है दिस थिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये इंडिया में वैलिड नहीं होगी. समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम पावर इन दिस कंट्री. दैट इज व्हाई वी से इन इंडिया देयर इज रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ. नाउ हु इज रूलिंग अस? यू टेल मी हु इज रूलिंग अस? हु इज रूलिंग अस? हु इज रूलिंग अस? हु इज रूलिंग अस? मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी. See, these people are ruling us because we have asked them to rule. Why? Because the constitution specifically says, the constitution of India under article 74 specifically says that there shall be a prime minister and his council of minister who shall take all the decisions on behalf of us. Why are they able to take decisions on behalf of us? Because it is us who has given this constitutions to ourselves. It is we the people of India who give to themselves this constitution. So everything has to work in consonance with the constitution. अब constitution का अगर तुम कभी article 39B और 39C पढ़ोगे, तुमको हो सकता है डिटेल लग रहा हो, बट मैजिक है इसमें, क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा. अगर ये आर्टिकल्स पढ़ोगे तो यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है कि इंडिया शैल बी अ वेलफेयर स्टेट. अब वेलफेयर स्टेट कौन सा होता है? बट समझ में आ रहा है? अब लेकिन देखो, तुमसे मैंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लिखी है और वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? कोर्ट. पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 4 है, पार्ट 4 में देयर इज दिस चैप्टर बाय द नेम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इफ यू आर थिंकिंग दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर माय एग्जामिनेशन, यू आर हाईली मिस्टेकन. यू आर नॉट एबल टू. चलो हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर इज दिस पार्ट 4 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 4 which means chapter 4. The chapter 4 or part 4 of the constitution of India talks about directive principles of state policies. So the constitutional makers in 1947 wrote down certain points stating that the state of India does not have resources to fulfill them right now. The state of India does not have the resources to fulfill them right now. But जब भी आपके पास resources हो फ्यूचर में, तो आप प्लीज उन चीज़ों को implement. It is written in DPSP. Your DPSPs are from article 36 till 51. तो DPSP 39B और 39C किसकी बात करता है? वेलफेयर स्टेट की. पर अगर मान लीजिए मेरे लिए सरकार वो चीज़ नहीं कर रही है, कैन आई गो टू द कोर्ट? नो. आई सेड ना DPSP है. DPSP वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं. फंडामेंटल राइट्स के लिए यू कैन अप्रोच द कोर्ट. अब ऐसे समझो, सो लेट्स से योर फादर, आपके पापा आपको कुछ बेसिक नेसेसिटीज तो देंगे ही देंगे, नहीं मिल रही हैं तो आप जा सकते हैं कंप्लेन करने. DPSPs आर लाइक लग्जरी. जैसे DPSP एक ये है कि देयर शुड बी इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड women. आर देयर इक्वल वेजेस? नो. बट ideally there should be. One of the DPSPs is that we should ban all the intoxicants, alcohol, ये सारी चीज़ें, use them only for medical purposes. But alcohol ban है? नहीं, because it is optional. It is not. You cannot go to the court of law. इसलिए तुम देखो कि बिहार और गुजरात में बैन है ना? पर फोर्स नहीं कर सकते आप स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते. स्टेट चाहेगा तो कर लेगा. देन देयर इज दिस DPSP. एक ऐसा DPSP है जैसे 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जितने रिलीजन हैं उनके लिए जो पर्सनल लॉज हैं. जैसे मुस्लिम्स में यू कैन मैरी 4 वाइफ्स, इन हिंदूज यू कैन मैरी ए सिंगल वाइफ. तो यहाँ पे डिफरेंसेज हैं. DPSP कहता है कि 44 आर्टिकल में कि इन दोनों को भी एक लेके आओ. अभी एक नहीं है, बट इसको एक करना है. तो DPSPs में वो चीज़ें लिखी हुई हैं विच आर गुड फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बट द कंट्री डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट देम. So we are waiting for the time when there would be enough resources. So the constitution specifically says when there would be enough resources, the government will make sure that there is no concentration of wealth in the hands of few. The DPSP 39B and 39C specifically says whenever the government has enough resources, it will make sure that the resources are not in the hands of few people only. That is why we have this concept of progressive taxation. There is this concept of progressive taxation. So your concept of progressive taxation is coming from 39B and 39C only. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ जाएगा. यूएस में नहीं है. यूएस में रिग्रेसिव टैक्सेशन है. आपकी जैसे इनकम बढ़ती है आपका टैक्स कम होता जाता है, बिकॉज दे वांट यू टू अर्न मोर. In India, 39B and 39C specifically says that we'll make sure that concentration is not in the hands of you. If I want to make sure that the concentration is not in the hands of you, what will I have to do? I'll have to take from the rich and give it to the
पुअर. सो द गवर्नमेंट इज लाइक रॉबिनहुड. अमीर से लेके गरीब को देना है, अमीर से लेके गरीब को देना है. ज़्यादा टैक्स लगाइए, 50 लाख का सीटीसी है, उस पर 30% टैक्स लगाइए, वो जो पैसा आ रहा है उससे राशन दीजिए 1-2 रुपये 3 किलो पे, जो राशन शॉप्स में राशन मिलता है. समझ में आ रहा है? टेक इट फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर. हु इज एक्टिंग एज द इंटरमीडियरी? द गवर्नमेंट. द स्टेट. बेटर वर्ड क्या है? स्टेट. क्योंकि गवर्नमेंट तो आती जाएगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, स्टेट रहना चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, विच इज अ लार्जर टर्म. स्टेट, बिकॉज स्टेट विल हैव पॉपुलेशन ऑल्सो, स्टेट विल हैव सोवरेनिटी, स्टेट विल हैव अ टेरिटरी ऑफ इट्स ओन. गवर्नमेंट तो एक पार्ट है. तो गवर्नमेंट माइट कम एंड गो, बट द स्टेट शैल बी देयर फॉर एवर. समझ में आया? पक्का? चलो, इसीलिए आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सम प्रिंसिपल्स विच आर बीइंग डायरेक्टेड फॉर द स्टेट्स पॉलिसी. स्टेट इज अ वेरी वाइड टर्म. स्टेट इज वाइडर देन गवर्नमेंट. समझ में आ रहा है? सो इट इज डायरेक्टिंग द स्टेट्स नॉट द गवर्नमेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट्स माइट कीप ऑन चेंजिंग. तो ये बोल रहा है जो भी स्टेट है, स्टेट ये कोशिश करेगा, वो स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा बीजेपी करेगी कि कांग्रेस करेगी. तो इट इज नॉट गाइडिंग द गवर्नमेंट, rather it is guiding the state, rather it is guiding the state. समझ में आया? स्टेट इज अ मोर पावरफुल वर्ड. चलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Now what is mixed economy? Mixed economy will have both public and private. We have Jio also, and then we have something like BSNL, है ना? चलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो, पहली लाइन बोलता है टिल नाउ वी हैव स्टडीड माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर वी टॉक्ड अबाउट एंड डुअल फॉर्म कंज्यूमर हाउसहोल्ड. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट आवर subject of discussion right now, so I'm cutting down those lines. Right now it says, but what an individual is consuming, performing, behaving cannot be concluded for how the economy as a whole is performing. इस लाइन में क्या बताना चाह रहा है एनसीईआरटी में? But what an individual is consuming, performing or behaving cannot be concluded for how the economy as a whole is performing. सही बात है. अंबानी अमीर हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं इंडिया अमीर हो जा रहा है. अगर इस फार्मर को शुगरकेन बोला है तो इसका मतलब ये नहीं सारे फार्मर्स को शुगरकेन बोला है. समझ में आ रहा है? इफ लेट्स से दिलजीत दोसांझ हैज टू मेक श्योर दैट ही इज मार्केटिंग मोर ऑफलाइन, इसका मतलब ये नहीं सारे कॉन्सर्ट्स सारे सबको बोल रहे हैं, सारे परफॉर्मर्स को बोल रहे हैं कि ऑफलाइन मार्केट करो. जैसी जिसकी नीड उसके लिए वैसा सोल्यूशन. समझ में आया? चलो, दैट इज वाई वी गो टू अनदर लेवल कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि वाई डू वी हैव टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स. वी हैव टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे जो हमने पढ़ाई की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जरूरी नहीं वो मैक्रो लेवल पे भी लगे. इंडिविजुअल लेवल पे आप किसान को स्पेसिफिकली बता रहे थे, किसी का मॉल था तो आप उसको स्पेसिफिकली बता रहे थे, किसी का कोई ऑर्गेनाइजेशन था तो आप उसको कस्टमाइज स्पेशल सॉल्यूशंस दे रहे थे. बट मैक्रो लेवल पे यू विल टेक द स्टेट एज अ होल. सो नाउ व्हेन मेकिंग पॉलिसीज फॉर अ स्टेट, योर कंक्लूजन्स, योर आर्ग्यूमेंट्स, योर एवरीथिंग वुड कंप्लीटली चेंज. राइट? स्पेसिफिकली बहुत अलग होगा, लार्जर लेवल पे बहुत अलग होगा. समझ में आ रहा है? दैट इज वाई वी हैड टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच विल टॉक अबाउट स्टेट एज अ होल. बड़े लेवल पे बातें होंगी कि देश का टैक्सेशन कैसा होगा, इंडिविजुअल टैक्सेशन नहीं. इंडिविजुअल टैक्सेशन होना है तो वो तो माइक्रो में आ जाएगा. होल लेवल पे टैक्स क्या लगाऊं, देश का इन्फ्लेशन कैसा होगा, देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, देश की जीडीपी क्या है, देश की नेशनल इनकम क्या है. मैं पर्सनल अपनी इनकम अपने सीए के पास लेके जाऊंगा, दैट विल बी काउंटेड अंडर माइक्रो. बट अगर देश का इनकम जोड़ रहा हूँ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीपी और नेशनल इनकम, तो देन इट विल फॉल अंडर मैक्रो. तो फॉर पब्लिक पॉलिसी, फॉर पब्लिक को जो भी सरकार को पॉलिसीज बनानी है उसके लिए मैक्रो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? लार्ज लेवल पे डेटा होगा ना. समझ में आ रहा है? पक्का? यहाँ तक समझ आया? चलो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडम स्मिथ. नाउ हु इज एडम स्मिथ? तो देखो, एडम स्मिथ जो थे ना, ही वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म. ही वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म फोकसेस अपॉन प्रॉफिट. कैपिटलिज्म फोकसेस अपॉन प्रॉफिट. क्या एडम स्मिथ के आने से पहले कैपिटलिज्म नहीं था दुनिया में? बताओ. मनुष्य अपनी चरित्र से कैसा इंसान है? लालची है. एवरीवन वांट्स टू अक्यूमुलेट ना. ये कैपिटलिज्म आया कहाँ से होगा? बताओ. लेट अस गो टू दोस टाइम्स व्हेन एवरीवन वाज अ हंटर और गैदरर. एवरीवन वाज अ, व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? अभी भी ग्रीडी है, बट हंटर एंड गैदरर के पोजीशन पे आते हैं. अब ये बताओ यहाँ पे कैसे ये कैपिटलिज्म आया होगा? अभी मान के चलते हैं हम लोग आज से 1000 साल पहले चल देते हैं, अब हम सारे हंटर गैदरर हैं, तो कैसे आया होगा कैपिटलिज्म? किसने सोचा होगा कि ये हेड है ये नहीं है? कैसे किसी ने तो सोचा होगा ना कि ये बॉस है, ये दीज पीपल वुड बी एम्प्लॉइज एंड दिस ही वुड बी द एम्प्लॉयर. कहाँ से ये आया होगा? ये पैदा होते इंसान. यस. तो लाइक दीज पीपल वर हंटर एंड गैदरर्स, है ना. एंशिएंट प्री कम्युनिस्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, बहुत पुराना टाइम. इसके बाद इसमें से कुछ लोग ऐसे होशियार होंगे जिन्होंने कुछ वेपन्स बना लिए, मतलब दिमाग बुद्धि से चालाक इंसान. अब इन्होंने क्या किया? व्हेन दीज पीपल हैड वेपन्स, व्हाट दे विल डू? नाउ दे विल स्टार्ट hunting more than what they require. So let's say if I require 1 kg of meat every day,
but let's say if I have some sophisticated weapons with me, I might able to gather 10 kgs, right? तो मेरा hunting जो है वो skill ज़्यादा था, मैंने hunting ज़्यादा कर ली. Now a lot of people from this will come to me. The reason, कि I'll work for you, you just provide me meat every day because I'm not able to hunt for myself. तो यहाँ से concept किसका build हो जाएगा? Slaves. Slaves नहीं बोल सकते. Let's say ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सर्फ का कंसेप्ट आएगा. आएगा ना. दूर तो उसके लिए मजदूरी करेंगे ना, तो वो सारा गैदर कर लेगा. ठीक है. यहाँ से धीरे 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 डेवलप करके कैसे होगा? पहले मान लीजिए सर्फ्स है, तो यहाँ पे और रूल करने वाला कौन होगा? वन हु हैज़ लैंड, वन हु हैज़ रिसोर्सेज, है ना. इसके अभी ये तब तक पॉसिबल होगा जब तक दुनिया में किस चीज़ का बोलबाला होगा? प्राइमरी एक्टिविटी का. मतलब दुनिया में जब तक खेती वेती रूल कर रही होगी, तब तक ये वाला क्लास होगा एक्सप्लॉइटिंग क्लास, और ये होगा जो एक्सप्लॉइट हो रहा होगा. ठीक है. देन देयर विल कम अ टाइम व्हेन देयर वुड बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन समवेयर अराउंड 1750s, है ना. है ना. तो यहाँ पे किसका इन्वेंशन होगा? मोटर का. मोटर का इन्वेंशन होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा हो जाएगी. मान लीजिए मेरा घर है और हम लोग कपड़े का व्यापार करते हैं. मेरी मम्मी कुछ कुछ काम करती है, मैं कुछ कुछ काम करता हूँ, पापा कुछ कुछ काम करते हैं, और हम बना के शर्ट्स दे देते हैं. अब मान लीजिए हम तीनों काम कर रहे थे, तो हम दिन भर में कितना काम करेंगे? बहुत ज़्यादा, 5-6 पीसेस. तो कुछ अपने कंजम्पशन के लिए और कुछ थोड़ा बहुत बार्टर में बेच देंगे. 5 साथ में क्या ही बेचोगे? बार्टर सिस्टम समझते हो? अपना खुद का कंज्यूम कर लिया और उससे फिर आगे जाके अपना कुछ कुछ सर्विसेज ले ली. 6 में से 3 शर्ट हम तीनों पहन गए और 3 शर्ट हम बेच के आ गए, जिससे हमें कुछ राशन पानी मिल गया. ऐसे ही चलता होगा. फिर यहाँ पे मोटर का इन्वेंशन होगा. अब जब मोटर का इन्वेंशन होगा तो प्रोडक्शन मेरे घर में ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा होगी. अब मान लीजिए मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, लेट्स से वी वर प्रोड्यूसिंग 6 शर्ट्स, नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस लेट्स से 250 300 शर्ट्स एवरी डे बिकॉज वी हैव मोटर विद अस. नाउ देयर इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपनिंग, है ना. तो शहरों में क्या लगना शुरू हो जाएंगी? इंडस्ट्रीज. देख रहे हो कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी पढ़ रहे हैं. पहले एग्रीरियन सेक्टर, इंडस्ट्री पे गए. अब इंडस्ट्री सेक्टर जब लगेगा, तो जो यहाँ पे इंडस्ट्री में, तो हम्म, जो यहाँ पे सर्च होंगे, है ना. अब ये यहाँ से भाग के आएंगे कहाँ पे? शहरों में. इसीलिए तुम देखोगे अर्बनाइजेशन, फ्रॉम विलेजेस विल कम टू वर्क इन इंडस्ट्री. नाउ योर क्वेश्चन. नहीं, उस समय भी तो एक्सप्लॉइटेशन उतना ही ज़्यादा था. मोर इंडिपेंडेंस. फैक्ट्रीज माइट रन फॉर 12 to 14 आवर्स ओनली, बट यहाँ पे तो 24 घंटे की बंधुआ मजदूरी थी ना. समझ रहे हैं? बिकॉज ह्यूमंस पर से लव फ्रीडम. ह्यूमंस लव फ्रीडम. दे वर गेटिंग मोर फ्रीडम है. There is some reason behind every phenomena that is happening around us. So a lot of people started migrating to cities. अब यहाँ से शहर का कॉन्सेप्ट आएगा. जहाँ इंडस्ट्री लगेगी, लोग बाहर से भाग भाग के आएंगे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए ज़्यादा? इंडिपेंडेंस. क्या चाहिए ज़्यादा? इंडिपेंडेंस. यहाँ मिल रही है ना, यहाँ पे मिल रही है. इसीलिए आप देखोगे, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई टेल यू वन मोर थिंग. इसलिए तुम देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा? वाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग. किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज़ें लगती हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना. इफ़ आई हैव टू प्रोड्यूस एनी गुड, और इफ़ आई हैव टू प्रोड्यूस एनी सर्विस, देन आई रिक्वायर 4 थिंग्स, राइट. वन इज योर लैंड, वन इज योर लैंड, वन इज योर लेबर, वन इज योर कैपिटल. एंड देन मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, चलो हम लोग साथ में कोई फैक्ट्री खोलते हैं. हम लोगों ने एक ज़मीन ले ली, हमारे पास कुछ पूंजी भी थी जिससे हम मशीनरी वगैरह ले आएंगे, और हमने लेबर भी बुला बुला ली. अभी चल जाएगा बिजनेस? क्या अच्छा, हम ही तो थे वो दोनों, तो चल ही जाएगा. तुम्हें बोलना चाहिए हाँ चल जाएगा, क्योंकि हम ही तो थे एंटरप्रेन्योर्स. आई व्हाट डिड आई से? लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस. वी गो एंड गेट सम लैंड, रेंटल ले लिया, है ना. देन वी हैव सर्टन कैपिटल विद अस सो दैट विल बी एबल टू बाय सम मशीनरीज. देन वी हैव लेबर विद अस. नाउ फोर्थ कौन है? हम खुद. देन ओनली वी आर एबल टू ऑपरेट दीज ना. इन तीनों को साथ में रेगुलेट करने के लिए भी तो एक चाहिए. उसी को तो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. द पर्सन हु इज एबल टू मेक ऑल ऑफ दीज फंक्शन इक्वली वेल विल बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर. यहाँ तक समझ में आया? पक्का. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गोल क्या है? प्रॉफिट मेकिंग. प्रॉफिट मेकिंग कब होगी? प्रॉफिट मेकिंग, व्हेन इज प्रॉफिट मेकिंग पॉसिबल? टेल मी. जब लैंड लैंड बदले में क्या लेता है? जब मैं कोई लैंड लेता हूँ तो लैंड क्या कुछ ले जाएगा ना बदले में? देयर इज नो फ्री लंच. देयर आर नो फ्री लंचेस. तो लैंड, व्हाट विल लैंड टेक? रेंट. व्हाट विल लैंड टेक? रेंट. व्हाट विल कैपिटल टेक? सो लेट्स से इफ आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम माय फैमिली, और लेट्स से सम मनी, व्हाट विल इट टेक? प्रॉफिट लेता है. ब्याज लेता है ना मेरे भाई. हम आपको 10 लाख रुपए उधार देते हैं, आप हमको 10 लाख के बदले क्या दोगे? कुछ हर महीने ब्याज. ब्याज, ब्याज इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट.
So capital will take its interest, land will take its rent, your labor will take its salary और wages. यही तो होता है, यही तीनों खर्चे होते हैं. ये खर्चे आपने बना लिए, उसके बाद या तो प्रॉफिट, इधर लॉस, बोथ थिंग्स कैन हैपन, राइट. चलो यहाँ तक समझ में आया. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फोकस किस पे है? प्रॉफिट बढ़ाना है. तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? जब मैं कोई भी चीज़ बेचता हूँ, लेट्स से इफ यू सेलिंग समथिंग, तो उसमें हम ये चारों चीज़ों का कैश कॉस्ट ऐड करते हैं, है ना, फिर उसमें कुछ मार्जिन लगाते हैं, अपना प्रॉफिट बता देते हैं. यही तो होता है प्रॉफिट मेकिंग. तो कैपिटलिस्ट को अपना क्या बढ़ाना है? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब रेंट कम हो, जितना वो कम कर सके, सैलरी वेजेस उसको कम देने पड़े, है ना, पक्का ना, तो कॉस्ट कम हो जाएगी चीज़ की. फिर इंटरेस्ट रेट कम हो, है ना, फिर एंटरप्रेन्योर तो छोड़ दो, उसको तो प्रॉफिट लॉस बचता है. चलो, तो हमें कोशिश करनी है रेंट कम करूँ, या फिर सैलरी या वेजेस कम करूँ, या फिर मुझे कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए. अब देखो, मैंने तुमसे क्या बोला था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट किसका बढ़ गया? डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन. क्यों? अभी कंपनीज को क्या चाहिए? चीप लेबर, वेजेस कम मांगे. अगर मैं उसको साथ में एक हाउस हेल्प दे दूं, हाउस हेल्प, तो उसका कुकिंग कॉस्ट बचा, साथ में बीवी खाना बना के रखेगी, है ना. उसका जो क्लीनिंग कॉस्ट है वो बचा. बोलो, अगर वो बीमार है तो उसके लिए समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ, है ना. अगर ये सारे काम उसकी वाइफ नहीं कर रही होती, तो वेज जो लेबर है वो ज़्यादा वेज मांगता कि कम? ज़्यादा मांगता. उसको ये सारी सर्विसेज खुद रखनी पड़ती. आप बैचलर हो गए तो यू विल पे फॉर योर लॉन्ड्री ऑल्सो, बट लेट्स से इफ योर वाइफ एंड योर वाइफ इज डोमेस्टिकेटेड, है ना, तो व्हाट विल यू डू? शील वॉश योर क्लोथ्स. तो आपका पैसा बचा. तो इसलिए आप देखोगे डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन भी उसी टाइम पे शुरू हो रहा है, बिकॉज दीज पीपल आर प्रमोटिंग इट. They want to promote it. They want to sell it. Why do they want to sell domestication of women? Because this is helping them reduce their cost. अगर वो इस काम का भी पैसा जुड़वा देंगे तो आप फिर वेज ज़्यादा मांगोगे ना, कि सर मेरा तो 50,000 में पड़ता नहीं खाता, आई वांट 80,000 रुपीज़. लेट्स से इफ योर वाइफ इज डूइंग दिस फॉर सम XYZ अमाउंट, देन यू माइट बी एबल टू वर्क एट 30,000 रुपीज़ ऑल्सो. करेक्ट. इसीलिए आप देखोगे यहाँ से कंसेप्ट और इसी टाइम पे शुरू होगा, चाइल्ड लेबर. वाई वर दे प्रमोटिंग चाइल्ड लेबर? बच्चा कम पैसे में काम कर लेगा, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी. समझ में आया? पर यहाँ पे फ्रीडम मिलना शुरू होगा, अर्बनाइजेशन होगा. अर्बनाइजेशन होगा, शहर बनेंगे, है ना, इंसान को. चलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब इसके बाद चलते हैं. अब इसके बाद अभी क्या चल रहा है? सर्विस सेक्टर. समझ में आ रहा है? बट तुम देखते जाओगे तो इंसान का फ्रीडम कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? फ्रीडम बढ़ता जा रहा है. फ्रीडम ही तो प्रोपोगेट हो रहा है. कॉर्पोरेट में यू वर्क फ्रॉम 10 to 7, सैटरडे संडे. समझ में आ रहा है? और हमारे तो इकोनॉमी में नहीं आया, इसको मैं करंट अफेयर से जोड़ता हूँ. अभी ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टू लास्ट मंथ एक लॉ आया है, विच मीन्स द लॉ इज बाय द नेम राइट टू रिजेक्ट. राइट टू, which means if let's say I'm employed in a company and which asks me to work from 10 to 6, if my employer is calling me after 6, I have this right of rejecting his call. If he is calling me before 10, I have this right of rejecting his call. Since Australia is a more developed economy, वहाँ पे ऐसे लॉज आ गए. वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में भी आएंगे. फ्रीडम तो बढ़ता ही जा रहा है ना. लॉन्ग रन में देखोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं. अब तुम देखोगे तो आजकल क्या प्रमोट करने लगे कैपिटलिस्ट, कि डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन नहीं होना चाहिए. वाई? नाउ बिकॉज हम सर्विस सेक्टर में चले गए हैं. अब सर्विस सेक्टर में हमें ताकत नहीं चाहिए, हमें दिमाग चाहिए ज़्यादा. और हमें सस्ते में कौन मिल जाएगा? द चांसेस ऑफ गेटिंग अ पर्सन हायर्ड फॉर अ सर्विस सेक्टर किसमें ज़्यादा है, विमेन में या मेल में? चीपर कौन पड़ेगा? मोस्टली फीमेल्स. वाई? तो लेट्स से नो दिस इज पेट्रियार्की, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ना. यही है. क्यों? इफ देयर इज दिस गर्ल हुज हस्बैंड इज ऑल्सो लिव्स इन लखनऊ, है ना, एंड शी माइट बी एबल टू वर्क इन गुड़गांव, लेट्स से नोएडा, बॉम्बे, पुणे. वहाँ पे शी माइट बी गेटिंग 1 लाख रुपीज़. बट इफ समवन इज ऑफरिंग 50 to 60,000 रुपीज़ इन लखनऊ, शी माइट हैपन टू वर्क हेयर. वाई? बिकॉज शी हैज़ हर फैमिली हेयर. सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स वैसे हैं. तो अब आप देखोगे तो डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन को अब पिछले 20-25 साल से प्रमोट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें तो एनी वे अपना क्या कम करना है? लेबर कॉस्ट कम. अब जिस टाइम पे जैसा लेबर होगा, जिस तरीके का होगा, उस तरीके से वो गेट किया जाता है. समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट वी वेंट टू प्राइमरी सेक्टर, देन वी वेंट टू सेकेंडरी सेक्टर, देन वी वेंट टू टर्शरी सेक्टर. समझ में आ रहा है? अब देखो, ये था एडम स्मिथ, है ना. अब ये जो कंसेप्ट है, मैंने तुमको क्या बताया, ये एक्सप्लॉइटेशन शुरू से ही हो रहा है. एडम स्मिथ कोई नया नहीं है, उसने बता दिया. अब देखो 14th सेंचुरी तक हम यूरोप में बोलते हैं कौन सी एज थी? डार्क एज. डार्क एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे क्लर्जी बहुत हावी थी. कौन हावी था? क्लर्जी, मतलब अदर वर्ल्डली, कि भाई तुम ये मत करो, वो मत करो, फिर आगे स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है. समझ रहे हो? अदर वर्ल्डली अफेयर्स. आवर फोकस वाज ऑन अदर वर्ल्डली अफेयर्स. इफ बाइबल सेड दैट सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो एवरीवन बिलीव्ड इन इट. बट 13-14 सेंचुरी के आसपास एक टर्म आप पढ़ते हो, रेनेसा. रेनेसा का मतलब होता है पूर्ण जागरण, आप वापस जिंदा हो रहे हैं. तो रेनेसा का कंसेप्ट आया कहाँ पे? यूरोप में. रेनेसा ने बोला कि हमें सिर्फ लिखी लिखाई कहीं सुनाई बातें नहीं समझनी, हमें हर चीज़ के पीछे क्या लगाना है? रैशनल रीजन, some scientific reason. If you are saying this to me, justify it to me. If the Bible says that the sun is revolving around the earth, justify it.
people started questioning the kings also कि why is the king ruling us, मैं किंग का बात क्यों मानूं, why, so people started questioning the institutes, whether be it political institutes like king कि why are you ruling me, तुम जो बोलते हो वही मैं क्यों मानूं, तुम्हारा बेटा ही क्यों रूल करेगा। इकोनॉमिक्स में भी लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, साइंस में भी लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। कॉपरनिकस बोलेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, तुमने बाइबल में बोला कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता, अर्थ के अराउंड सन रिवॉल्व करता है, तो ऐसा नहीं है, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। समझ में आ रहा है। उससे पहले ह्यूमन की बॉडी को नहीं खोलते थे, सर्जरी वगैरह नहीं करते थे, बिकॉज पीपल बिलीव दैट ह्यूमंस आर क्रिएशन ऑफ गॉड, ह्यूमंस आर क्रिएशन ऑफ गॉड, सिंस ह्यूमंस आर क्रिएशन ऑफ गॉड देयर बॉडी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। काटे पिटो मत। समझ में आ रहा है। पर रेनेसा के आने से लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, हमें ह्यूमंस को रैशनल माइंड से समझने दो, हम उनकी सर्जरी परफॉर्म करेंगे, हम उनको डाइसेक्ट करेंगे। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस पेंटिंग कॉल्ड मोनालिसा, व्हाई इज दिस सो फेमस। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा इज फेमस बिकॉज जब रेनेसा के टाइम पे ही बनाया गया था इटली में। जब रेनेसा नहीं आया था तो जो पेंटिंग्स वगैरह बनती थी वो किसकी बनती थी, किंग वगैरह की। तो योर वर्ल्ड वॉज रिवॉल्विंग अराउंड योर किंग। बट मोनालिसा उन पेंटिंग्स, शुरुआती पेंटिंग्स में थी जब पेंटर ने पहली बार किसी इंसान के बारे में, एक नॉर्मल आदमी की ब्यूटिफिकेशन की थी। दैट इज वाई मोनालिसा एज अ पेंटिंग इज सेलिब्रेटेड अलॉट, बिकॉज दिस वॉज टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन। समझ में आ रहा है, इसीलिए सेलिब्रेटेड है। उस टाइम पे आम इंसान पे लोगों का फोकस बढ़ेगा। अब जब हर जगह पे रेनेसा हो रहा है, हर जगह पे रीजन है, हर जगह पे रैशनल है, हर जगह पे साइंस है, तो इकोनॉमिक्स में भी होगी। इसलिए आप देखोगे बहुत सारी फॉरेन में कंपनीज बनना शुरू होंगी, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी। दैट इज वाई यू विल सी इन 1498 वास्को ड गामा कम्स एंड एंटर्स इंडिया। नए ट्रेड रूट्स ढूंढे जाएंगे, कंपस ढूंढा जाएगा, नई नई डिस्कवरीज होंगी। People will start looking for new lands. America was not known before 1492. It was only in the year 1492 that Columbus discovered America. समझ में आ रहा है। तो रेनेसा से बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अच्छा, रेनेसा ही प्रमोट करेगा कि हमें ना तीन चीज़ों पे फोकस करना है, थ्री चीज। वन इज योर गॉड, विच मीन्स propagate Christianity. That is why these people were traveling a lot. Then second is your glory. ग्लोरी क्या होती है, आप जब अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा करते हैं, अपने सिचुएशन से उठ के बहुत बड़ा कुछ बनाते हो, तो अपने लोगों के लिए क्या लाते हो, ग्लोरी। तो यू हैव टू लुक इन फॉर गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। अर्न मनी एज मच यू कैन, गॉड, ग्लोरी एंड गॉड, थ्री चीज। तो दीज पीपल आर लुकिंग फॉर गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। इसीलिए तुम यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे, क्रिश्चियनिटी में दो टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं, वन इज योर प्रोटेस्टेंट्स एंड वन इज योर कैथलिक्स। पता है ना, कैथलिक्स क्या है, ओल्ड स्कूल है। कैथलिक क्या है, ओल्ड स्कूल, जो अदर वर्ल्ड में आज भी मानते हैं। दैट इज वाई कैथलिक्स ओनली हैव दिस ऑफ ऑन संडे, संडे को प्रे करो, है ना। बट आप एक यहाँ पे देखोगे एक सेक्शन और है क्रिश्चियंस का, विच इज प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। यूके और यूएस में आपको ये वाले मिलेंगे। तो एक उसी टाइम पे बाबा हुए, बाबा इन द सेंस उनके खुद की क्लर्जी, सेंट कैल्विन, सेंट कैल्विन सेड दैट वर्क इज वर्शिप, जो हम बचपन से पढ़ते हैं, वर्क इज वर्शिप। ही सेड, ही स्पेसिफिकली एम्फसाइज्ड ऑन दिस फैक्ट दैट डू नॉट बिलीव इनटू क्लर्जी एंड एवरीथिंग। You cannot decide where will you go, where is your final destination. He said your final destination is not decided by your clergy or how much are you worshipping God. Your final destination, whether you will go to swarg or whether you will go to nark, will be decided by the type and kind of work you do. आप कुछ भी करो उसमें बेटर हो। उसने ये बोला कि आप जो भी काम करते हो अगर उसमें बहुत अच्छे हो तो ये पक्की बात है आप कहाँ जा रहे हो। तो सेंट कैल्विन की थ्योरी के हिसाब से सचिन तेंदुलकर का टिकट कहाँ पे कटेगा, स्वर्ग। वाई, बिकॉज ही वॉज एक्सेप्शनली गुड at what he was doing. So you have to be best at what you do. That is why they gave this slogan by the name work is worship. Just focus on your work. If you're focusing on your work, you're completing your work, you're doing your task according to Saint Calvin, you'll go to heaven. इसीलिए तो इतने सारे फॉरनर्स उस समय इंडिया घूम घूम के आ गए। उनको यही तो मोटिवेशन था, क्योंकि उस समय का मोटिवेशन ये थोड़ी था कि मेरे पास इतने ये है वो है, ये कुछ नहीं था। उनको तो बस ये बताना होता था कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैं अपने काम में बेस्ट हूँ। समझ में आ रहा है। बहुत लंबी कहानी बता दी, बस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एडम स्मिथ ने ऐसा, ये मत समझे कि एडम स्मिथ से पहले कैपिटलिज्म था ही नहीं। मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट आ चुका था। मर्केंटिलिज्म, मर्केंटिलिज्म मीन्स, मर्केंटिलिज्म मीन्स गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। तो गोल्ड पे फोकस तो तभी भी था। अब देखो 1776 के आसपास एक ये आएंगे फिलोसोफर, कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज स्कॉटिश। स्कॉटलैंड इज अ कंट्री इन यूरोप, इज अ कंट्री इन यूरोप। स्कॉटलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ केक्स, लैंड ऑफ केक्स। चलो, तो ये स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने बोला कि भाई देयर इज सम इनविजिबल हैंड, द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू व्हाट शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस, द गवर्नमेंट शैल जस्ट फोकस अपॉन basic things. The private players will make sure that what has to be produced by knowing what the demand of the people. समझ में आया, कैपिटलिज्म प्रमोट हो गया। और प्लीज बोर मत हो, ऐसे ही पढ़िए। चलिए, ये हमें डेट याद नहीं रखनी है ना। हमें क्या याद रखना है, एडम स्मिथ से रिलेटेड इनविजिबल हैंड का थ्योरी, है ना। और एडम स्मिथ का फेमस बुक का नाम क्या है, ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। फेमस बुक ऑफ
एडम स्मिथ कॉल्ड, क्वेश्चन आता है उस पर भी। चलो एडम स्मिथ, ठीक है, ये कंसेप्ट समझो, लेजे फेयर। नाउ लेजे फेयर इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स फ्री ट्रेड, विच मीन्स फ्री ट्रेड मतलब सरकार प्लीज रोको टोको मत, इसको जो बनाना है बनाने दो। वो बना ही इसलिए रहा है क्योंकि इसकी डिमांड है। दैट इज वाई यू विल सी अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर नॉट अलाउड इन इंडिया आर अलाउड इन यूएस। गैमलिंग इज समथिंग विच इज अलाउड वहाँ पे एकदम आराम से, समझ में आ रहा है उनको। या लेट्स से कोई बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे लेजिटिमाइज एवरीथिंग। डिमांड है, वो सिंपल चलता है कि डिमांड है तो मिल रहा है। अब तुम डिमांड करना बंद कर दो, नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल अबाउट इट, पीपल वांट गन, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू सेल मोर गन्स। समझ में आया? चलो ठीक है। सो ही वाज एन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फॉर लेजे फेयर। लेजे फेयर मीन्स फ्री ट्रेड, दे शुड बी फ्री ट्रेड। ये बुक है, ही वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस पूछ सकता है। एंड ही वाज द वन हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बस पूछ रहा हूँ। तो जीडीपी इज द अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी, द अमाउंट द फाइनल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ पीरियड ऑफ टाइम। एक तरीके से मान लीजिए किसी भी एक देश की इनकम, जैसे लेट्स से आपकी इनकम होगी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, किसी की भी कुछ कुछ इनकम होगी, किसी की 5 किसी की 10, वैसे आपके देश की भी कुछ इनकम होगी, है ना, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी। सो ही वाज द फर्स्ट वन टू टेल कि भाई देश की भी इनकम मेजर करो, है ना, देश की भी इनकम मेजर करो। चलो अंडरस्टूड। नाउ द थ्योरी प्रोवाइडेड बाय एडम स्मिथ एज पर द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अच्छा ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स कैसी है? कैपिटलिस्टिक ही है ना, तब यही तो हो ही रहा है। तो मॉडर्न इकोनॉमी इज योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हाँ, so he is the father of capitalist economy. He says as per the founding father of modern economics. As per the founding father, who's the founding father? Adam Smith. So according to Adam Smith, if the buyers, the one who is buying, and the sellers in each market took their own decisions as per their self-interest, economists will not have to think of wealth and welfare of the country. मतलब वो कह रहा है कि market है, so let's say assume India is a market. Let's assume India is a market. What Adam Smith is trying to say is that if we leave it on the buyers, buyers को क्या बोल सकते हैं? Consumers. If we leave it on the consumers, the producers will themselves make sure कि क्या चाहिए इसको. The government need not tell it. The government need not. सेम बात है, घुमा घुमा के बोल रहा है, लेकिन साल भर में इकोनॉमिक्स ऐसी पड़ जाएगी डिटेल में, और इतना लंबा है नहीं, करने को इसको कर सकते हैं, करने को आई कैन कंप्लीट दिस इन 4.5 hours. चलो एज पर द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इफ द बायर्स एंड सेलर्स इन ईच मार्केट took their own decisions, so they're taking their own decisions, these people are taking their as per their self interest. self interest किस चीज में होगा? मैक्सिमाइजिंग, एवरीवन वांट्स टू डू दैट ना, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, यही तो होगा सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, economists will not have to think of wealth and welfare of the country. Then if this is happening, the economists will not have to think about wealth and welfare. welfare का concept इंडिया में कहाँ पे दिया हुआ है? EPSPs, which is part 4 from article 36 to 51. Your article 39B and 39C specifically talks about welfare, that India shall be a welfare economy. मतलब वो कह रहे हैं वेलफेयर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, वो खुद ही देख लेंगे। चले, he advocated that the role of the government should be minimized. He is not saying that the government should not be there. The government should be there, but it should be minimized. It should be, इसी को बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, बीजेपी भी तो यही बोलती है। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में अंतर होता है, गवर्नमेंट थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, गवर्नेंस थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है। मतलब हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बैंकिंग का काम करो हम आरबीआई बना देंगे, आप पोर्ट्स का काम करिए हम पोर्ट ट्रस्ट बना देंगे, पर हम पोर्ट बनाएंगे नहीं, समझ रहे हो? आपकी हेल्प के लिए वट एवर इज रिक्वायर्ड विल प्रोवाइड। समझ में आया? चलो नाउ अकॉर्डिंग टू हिम द गवर्नमेंट शुड बी, द गवर्नमेंट शुड minimal role, right? And it should be limited to just 3 things, very important. He says that the government should function only 3 things. One is your protecting the national borders, protecting the national borders. इंडिया के नेशनल बॉर्डर्स किस किस कंट्री से लगते हैं? देखें, पाकिस्तान से लगता है। पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट का बॉर्डर लगता है? जम्मू एंड कश्मीर, देन योर पंजाब, देन योर राजस्थान, एंड देन योर गुजरात, 4 states, right? Then we share like we have certain boundary with Sri Lanka also. तो श्रीलंका से हम एक वाटर बॉडी शेयर करते हैं विच इज कॉल्ड एज पाक स्टेट, विच इज कॉल्ड एज पाक स्टेट। व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट का मतलब होता है एनी वाटर बॉडी, एनी वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स 2 large land masses. समझ में आया? तो योर लैंड मास नंबर 1 इज इंडिया and your landmass number 2 is Sri Lanka. So there is a specific water body that divides them.
दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पाक स्टेट। दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, बेरिंग स्टेट है, बहुत सारे स्टेट है, सुंडा स्टेट है। हमें पाक स्टेट याद रखना है अभी, क्योंकि हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चले, चलो। नाउ वी शेयर बॉर्डर्स विद बांग्लादेश ऑल्सो, है ना, बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर शेयर करते हैं। ये आप मुझे बताओगे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम एक कंट्री भूल गए, कौन सी? म्यांमार। यहाँ पे कंट्री है ना म्यांमार, म्यांमार, बर्मा, रंगून, है ना, रंगून। रंगून वॉज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। इट वॉज इन द ईयर 1935 दैट म्यांमार वॉज टेकन आउट ऑफ इंडिया। तभी गाना मेरे पिया गए रंगून, तो रंगून वॉज म्यांमार, रंगून इज म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम है रंगून। 1935 तक रंगून वॉज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, बट 1935 में इट गॉट डिवाइडेड फ्रॉम इंडिया, सेपरेटेड, अंग्रेजों ने हटा दिया था। तो रंगून विच मीन्स म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कौन से बॉर्डर स्टेट्स हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हैं? तो हमारे इतने सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। सिक्किम भी हमारे बॉर्डरिंग स्टेट है। सिक्किम तो इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट भूटान, भूटान इज ऑल्सो अ नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। बट भूटान से हमें कोई थ्रेट नहीं है। हमें इतनी सारी कंट्रीज से निपटना है। अब ये बिजनेस बिजनेस खेलेंगे तो इनसे कौन बचाएगा? इसलिए सरकार को प्रोटेक्ट क्या करनी है? नेशनल बॉर्डर्स, नेशनल बॉर्डर्स। समझ में आया? ऑल्सो इट हैज़ टू फोकस ऑन इन्फोर्सिंग सिविल लॉज, इन्फोर्सिंग सिविल लॉज। दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो आप आ जाओ, है ना। Amazon, so let's say if I buy a red iPhone 16 Pro Max from Amazon, Amazon it gives me a red, let's say green iPhone. What do I do now? Where should I go? I'll go and complain in consumer forum. Consumer forum किसने बनाया हुआ है? गवर्नमेंट ने, because it has to enforce civil laws. Thirdly, engage in public works. छोटे मोटे मिड डे मील भी दो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? चले, चलो। नाउ स्कूल ऑफ क्लासिक ट्रेडिशन। व्हाट इज द स्कूल ऑफ क्लासिक ट्रेडिशन? ये है स्कूल ऑफ क्लासिक ट्रेडिशन, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। नाउ लेट अस रीड दिस। इन दिस स्कूल, स्कूल समझते हो, थॉट्स, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं कि वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, ऐसे ऐसे ये लोग अलग अलग। इन दिस स्कूल ऑफ थॉट इट वॉज बिलीव दैट ऑल द लेबरर who are ready to work will find employment and all the factories will be working at their full capacity। मतलब एडम स्मिथ कहता है सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितने लोगों को नौकरी चाहिए नौकरी भी मिल जाएगी और फैक्ट्री अपने फुल प्रोडक्शन पे चलेगी। तो लेट्स से फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 25 टन ऑफ क्लॉथ एवरी डे, तो 25 टन होता रहेगा। ये कौन बोल रहा है? ये चीज़ दुनिया मान चुकी थी, ये चीज़ दुनिया मान चुकी थी। अभी आएगी प्रॉब्लम। ये 1929 तक सब लोग इसी चीज़ को मान रहे थे। किसको? फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड। समझ में आया, है ना? चलो, हाँ 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 हाँ, चलो। नाउ कम्स 1929, नाउ कम्स 1929। 1929, व्हाई इज इट सो स्पेशल? ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन। क्या हुआ था ग्रेट डिप्रेशन में? हाँ, क्या हो गई थी? शट डाउन हो गई थी। इकोनॉमी गिरने का मतलब? देखो, डिमांड जो थी ना, जब डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, जब डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, तो प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? और प्रोडक्शन के कम होने से क्या कम हो जाएगी? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। देखो, एक इन्वेस्टमेंट साइकिल याद रखना आज से। ये मैंने बस अपने लिए याद करने के लिए बनाया, नहीं माने, आप भी याद कर लो। IPEIS विच सेज, अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। अब उस इनकम का या तो फिर आप डिमांड कर दोगे या सेविंग करेंगे। अभी डरो मत, मैं बताता हूँ। लेट्स से आई हैव दिस फैक्ट्री वेयर इन आई मैन्युफैक्चर दिस पेन। My manufacturing capacity is of 100 pens a day. My manufacturing capacity is of 100 pens a, so to produce 100 pens I require a capital of let's say 50 lakh rupees। मैंने 50 लाख रुपए में फैक्ट्री डाली है, 100 पेन बनाता हूँ एक दिन में, एंड आई एम एबल टू एम्प्लॉय हाउ मेनी पीपल? 5 एम्प्लॉइज। नाउ लेट्स से देयर इज दिस टेबल, so when I say the investment is increasing, और इसको इतना रटो ही मत। मान लीजिए मैंने 50 लाख की जगह आप अपनी फैक्ट्री में कितने लगा दिए? 1 करोड़। तो लॉजिक कहता है आप पेन कितने बनाऊंगा? 200। और एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? 10। अब इसको देखो, एज माई इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज, एज माई
माई प्रोडक्शन वेंट हाई और लो, माई इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज, माई प्रोडक्शन इंक्रीज। एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, 5 से 10 लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों का इनकम लेवल बढ़ा ना। अभी 5 लोगों की जेब में पैसा जा रहा था, कितने लोगों की जेब में जा रहा है, 10 लोगों की जेब में। अब वो 10 में, लेट्स से व्हाटएवर मनी यू हैव इन योर पॉकेट, व्हाट डू यू डू विद योर मनी? यू ईदर डिमांड समथिंग, स्पेंड कर देते हो, या तो यू सेव समथिंग, है ना। अभी तो सेव क्या ही होता होगा, अभी सब खर्च होता होगा। बट लेट्स से इफ यू हैव सम मनी, व्हाट लाइक ईदर यू डिमांड समथिंग और यू सेव इट। तो लेट्स से इफ आई हैव सम सॉर्ट ऑफ इनकम, आई विल ईदर गो एंड डिमांड समथिंग कि भाई मेरा हेयर कट कर दो, मेरी गाड़ी का ये बना दो, कार वॉश कर दो, ये सब कर दो, है ना। तो मेरा डिमांड है, मैं डिमांड बढ़ाऊंगा। अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर मैं कुछ मनी सेव कर रहा हूँ। इफ आई एम सेविंग सम मनी, वेयर एम आई कीपिंग इट? टू बैंक्स, आई एम गिविंग इट टू बैंक्स। बैंक्स क्या करेंगे उस पैसे को? लोगों को उधार पे और दे देंगे, तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा पैसा है ना, बैंक्स हैव मोर मनी टू गिव इट टू पीपल। So your investments automatically increase. If your savings are high, your investments are automatically high. Which means if your savings are directly proportional to your investments. If my savings increase, my investments will automatically increase. You will be able to put in more money, na. If my so let's say if my income increases, chances are my savings will increase. If my savings will increase, then investments will increase. Let's say if my income increases, my demand will increase. Obviously, if I'm earning, let's say 1 lakh rupees, now I've started earning 2 lakh rupees. My demand will increase, ना. ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करूँगा. So my income has increased, so my demand has increased. Once my demand has increased, now the producer is watching कि पहले तो यार ये महीने में 100 अंडे ले जाता था, अब ये महीने में 200 अंडे ले जाता है, तो अंडे का प्रोडक्शन बढ़ा दो। समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन बढ़ा दो मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा तो प्रोडक्शन होगी, तो योर इन्वेस्टमेंट साइकिल विल बी कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे क्या हुआ? लोगों के पास पैसा था ही नहीं, तो लोगों के पास इनकम ही नहीं थी, तो किस बात की सेविंग? और सेविंग नहीं तो बैंक्स के पास पैसा नहीं, बैंक्स के पास पैसा नहीं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं। और दिमाग में रखेंगे अभी गवर्नमेंट का इंटरफेयर जीरो है, क्योंकि हम किस में बिलीव कर रहे हैं? ये मैं 1929 में खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, अभी किस में बिलीव कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एडम स्मिथ ने क्या बोला था? मिनिमम गवर्नमेंट। So the government is not interfering. He said that everyone will take care of themselves. Now what the condition happened is that the people have no income levels. When people have no income, they won't have savings. When they won't have savings, they will not go to the banks. They will not go to the banks. They will not save in the banks. If they are not making any invest savings in the bank, how will bank give people to invest? है ना? तो ये देखिए डिस्टर्ब हो गया चेन. Secondly, now since income is not there, so saving is not there, so banks are not getting money. Banks are not able to let. Secondly, if income is down, demand is also less. डिमांड इज ऑल्सो लेस, पैसे ही नहीं है तो डिमांड क्या करोगे? अब जब डिमांड ही नहीं हो रही तो प्रोडक्शन भी गिर जाएगा, डिमांड नहीं हो रही तो क्या गिर जाएगा? और प्रोडक्शन गिर जाएगा तो फिर क्या गिर जाएगी? एम्प्लॉयमेंट। अभी जरूरत थी 100 पेन 200 पेन की, तो 10 लोग एम्प्लॉय किए, अभी प्रोडक्शन अब डिमांड ही आ रही है 50 पेन की, तो 7 का ले ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ले ऑफ। जब नौकरी से निकालते हैं उसको बोलते हैं ले ऑफ। जब लार्ज स्केल पे लोगों को नौकरी से निकाला जाए उसको बोलते हैं ले ऑफ। एक आदमी फायर होता है, 10-12 ले ऑफ होते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? ले ऑफ। तो तुम समझ रहे हो ये कितना विशियस साइकिल है? विशियस है साइकिल, क्या है विशियस, कैसी? इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक है ना। तो अब इसे कैसे निकला जाए भैया? क्योंकि देखो भाई क्या हो रहा है ना, सब कुछ मिक्स हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया। इनकम लेवल थी नहीं तो डिमांड नहीं की, डिमांड नहीं की तो प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया तो इंप्लॉयमेंट कम होगी, इंप्लॉयमेंट कम हो गया तो लोगों के पास फिर से इनकम कम होगी। सेविंग नहीं करोगे, सेविंग नहीं करोगे तो बैंक्स में क्या डालोगे? बैंक्स को नहीं दोगे तो बैंक्स क्या देगा? तो सब विशियस साइकिल हो गई। अब बहुत परेशान यूएस, बहुत परेशान है ना, स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गया। जब स्टॉक मार्केट चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं तो फिर खत्म नहीं होगा कुछ। चलो, तो अब बहुत परेशान, कौन परेशान? यूएस परेशान। अब यूएस में उस टाइम पे एक प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. Franklin D. Roosevelt felt that he might lose the elections because there is economic depression. Now what did he do is he started calling a lot of economists कि आके मेरी हेल्प करें, आके मेरी हेल्प करें। तो आके इनकी हेल्प करने एक इकोनॉमिस्ट आया जिनका नाम था जॉन मिनियार्ड कीन्स, JM कीन्स। और कीन्स ने एक थ्योरी दी जो कहलाई कीनीजियन इकोनॉमिक्स। क्या कहलाई? कीनीजियन इकोनॉमिक्स। कीनीजियन इकोनॉमिक्स। कीनीजियन इकोनॉमिक्स क्या बोलेगी? कीनीजियन इकोनॉमिक्स बोलेगी कि मैं कैपिटलिज्म में सपोर्ट करता हूँ, मैं कैपिटलिज्म का सपोर्टर हूँ, बट साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसीलिए जब आप कोविड में देखोगे, लॉकडाउन लगा था, तो भारत सरकार ने उस टाइम पे 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला था। अभी सब कहने की बातें हैं, जुमला है, बहुत सारी स्कीम जोड़ दी थी, मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, बट फिर भी पेपर में एक 20 लाख करोड़ का बजट निकाला था। क्यों किया जाता है ये?
क्योंकि देखो ना यहाँ पे बैंक के पास पैसे ही नहीं बच रहा था। अब अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे बैठी है कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आके देख रही है, एक इंसान है मान लो, लड़की है गवर्नमेंट, वो देख रही है इतने सब परेशान है, वो आके बोलेगी ऐसा कोई चिंता मत करो, बैंक नहीं दे रहा ना पैसा, मैं देती हूँ। और तुमको नहीं दे रही हूँ, मैं बैंक को देती हूँ। मैं किसको देती हूँ? बैंक। बैंक मुझे कमा के वापस दे देगा। मैंने किसको दे दिया? बैंक्स को। बहुत चीप रेट पे दे दिया, बहुत कम इंटरेस्ट रेट में दे दिया। कम क्यों दिया? ताकि लोग ले, कि बैंक्स को देंगे कम में तभी तो बैंक्स कम में आगे आगे देंगे। अब बैंक्स के पास पैसा आ गया, तो बैंक्स ये पैसा किसको देगा? इन्वेस्टर्स को। अब देखो वापस इन्वेस्टर के पास पैसा आया तो इन्वेस्टमेंट में पैसा फूका, एक्स्ट्रा फूका, विदाउट डिमांड फूका, फूका ना पैसा। पैसा फूका तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो लोगों की इंप्लॉयमेंट बढ़ी, इंप्लॉयमेंट बढ़ती है उनकी इनकम, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, वापस वो चक्का घूम गया। या फिर सेविंग्स बढ़ी, अभी सेविंग्स बैंक में जाएंगी, बैंक ने जो गवर्नमेंट से ले रखा था बैंक धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को लौटा देगा, और चक्का वापस घूम जाएगा। इफ़ यू माइट हैव हर्ड अबाउट द सिटी कॉल्ड लॉस एंजलिस, सुना है? वेयर इज दिस? एलए कहाँ पे है? कभी एलए के बारे में पढ़िएगा, एलए सही बना। LA was not LA back in 1929. When John Maynard Keynes went to Franklin to Roosevelt, he advocated that the government should start spending more. When the government will spend more, there will be more investment, more production, more employment, more income, more demand, and demand shall meet the production. Right? तो ये बोलना शुरू किया किसने? कीन्स ने। तो अब इनको समझ में, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करते हैं? तो इन्होंने बोला, लॉस एंजलिस एक खाली खाली सी जगह थी उस टाइम पे, इन्होंने बोला कि वहाँ पे चल के क्या बनाऊँ? रोड्स, फर्जी रोड्स बनाऊँ, क्योंकि रोड्स तो काम भी आ जाएंगी। तो रोड्स बनाई। रोड्स बनाने के लिए वहाँ पे कौन लोग पहुँच गए? लेबर्स, जिनको परेशानी हो रही थी इसमें डिप्रेशन में। अब जब लेबर्स वहाँ पे जाएंगे और रोज़ गड्ढा खोदो पानी पियो, ताकि जब वो रोड्स बनाएंगे तो उनको पैसे कौन देगा? गवर्नमेंट। अब लेबर के पास जब शाम को पैसा आता है तो लेबर क्या करता है उस पैसे का? कहाँ पे? खाने पीने में। पीने में तो करेगा ही करेगा, मोस्टली लेबर्स डू दैट, है ना? वर्क फोर्स विल मोस्टली डू इट। सो नाउ सिंस इट हैज़ मनी, दीज पीपल, दीज लेबर स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर अल्कोहल, एंटरटेनमेंट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ। समझ रहे हो ना कि सुबह से शाम काम किया, दे बीन वर्किंग फ्रॉम 7 in the morning till 6 in the evening। शाम को लेबर को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशनल ड्रिंक्स। इसलिए तुम देखो कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों का हब कौन बन गया? पहले। अभी इंडिया में कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ पे नई रोड्स बनने लगे, वहाँ 50,000 वर्कर्स काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे काम करने, शॉप्स लगाने। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमी सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं बूम करती, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बूम कर जाती है। लेबर को तो पैसा मिलना शुरू हो ही गया, और यहाँ पे जाके जिन्होंने कियोस्क लगाना शुरू किया, जिन्होंने बार खोले या जिन्होंने कैसीनो खोले, क्योंकि तुम देखो वहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो यूजुअली लेबर्स ही करते हैं। जुआ ही तो है कसिनो। What do you do in a bar? You drink, all sorts of entertainment is there. That is why you will see LA became a अब LA ऐसे ही बना LA। समझ में आया? राइट आफ्टर इकोनॉमिक डिप्रेशन। समझ में आया? चलो नाउ मैंने समझा तो दिया है। इट केम इन द ईयर 1929। इट सॉ द फॉल इन आउटपुट लेवल, मतलब प्रोडक्शन वेंट डाउन, एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री, एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्रीज of Europe and North America. It saw the fall in two things, fall in one, production, and then fall in employment. So there was unemployment. So there was unemployment. Demand fell terribly. So there was no demand. अभी बताया, demand fell terribly in the market. Factories were lying idle because there was no production. Workers were thrown out of the job. This is called as layoff in the modern world. समझ में आया? So that is that. हाँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा, आप क्या करें? नाउ व्हाट शुड दिस गाय डू? अब ये मान लो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, तो ये परेशान है। नाउ व्हाट शैल ही डू? विल कॉल सर्टेन इकोनॉमिस्ट सच एज कीन्स। पता है मैंने कीन्स के बारे में। वी शैल डू नाउ इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आई रियली डोंट नो व्हाट्स द टाइम।